Previous class. कोई डाउट नहीं है? ये पीपीटी दिख रही है? इज दिस विजिबल? Yes, sir. ओके, तो लास्ट टॉपिक फ्रॉम द मॉड्यूल 3, द फर्मी लेवल एंड द डिपेंडेंस ऑफ इट्स ऑन टेम्परेचर. So you will get one question from this in the exam, and either it will be a combination of numerical and theory or completely theory, but definitely you will get one question. So first, the electrons in the solid follow Fermi-Dirac statistics, and that Fermi-Dirac statistics is based on some assumptions. So there are three assumptions. Three of these are: first is the electrons are indistinguishable, second is electrons have wave nature, third is that the electrons follow Pauli exclusion principle. And this is the formula for Fermi-Dirac statistics. F of E is equal to 1 upon 1 plus exponential power E minus EF by kT, where in this formula K is a Boltzmann constant. You know the value of Boltzmann constant. In SI unit it is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin, and in electron volt it is 8.60 into 10 to the power minus 5 electron volt. So this function Fe is called the Fermi-Dirac distribution function, and basically this gives us the probability that the any energy state E will be occupied by an electron at certain temperature T. So if the value of this function is 1 by 2, it means at that temperature that state is 50, there is a 50% of probability that electron will be there. And the quantity EF in this expression is called the Fermi level, and it represents a very important quantity from the semiconductor point of view. It is necessary to understand it to understand the behavior of semiconductors. So first, if E is equal to EF, so our energy is equal to Fermi energy, then what will be the value of this wave distribution function? If you put E is equal to EF, then this power, exponential power, goes to 0. So this will be exp power 0, that will be 1. So this will be 1 upon 1 plus 1, that is 1 by 2. So this is the probability for electron to occupy the Fermi level. So the probability of electron to occupy the Fermi level is 0.5 or half. ये क्लियर है सबको? डिसाइड करेंगे कितने. क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Okay. Now let's check if in this expression T is 0 Kelvin, then we have two different cases. One is less than EF, second is greater than EF. So for the both the cases we will check what will be the value of F of E.
So T equal to 0 Kelvin. First case E is less than EF, then this part will be negative will be, this will be 1 by exp raised to power infinity, that is 0, that is 1 by 1, so this come out to be 1. So for T equal to 0 and E is less than EF, this will be 1, and for E is greater than EF, this will be 0. Anyone have problem in this too, this 1 and 0? So what this basically means? This basically means it at 0 Kelvin, when temperature is 0, all the energy state up to EF, means till EF, are filled with electrons, and all the state above EF are empty. So EF तक जितने भी स्टेट हैं completely filled हैं, क्योंकि वहाँ probability 1 है, और उसके नीचे जो है 0 है, क्योंकि वो खाली है. Clear है? So this is this. At temperature higher than 0 Kelvin, some probability Fe exists for state. Oh, this is. Now if we increase the temperature, तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट विद ग्रेटर देन EF इंक्रीजेज. तो ये जो 0 था, ये 0 नहीं रहेगा. जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैन गो इन द एक्साइटेड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन द एनर्जी स्टेट विद एनर्जी ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी ऑल्सो. क्लियर है? यही यहाँ पे लिखा है, टेम्परेचर हायर देन 0 केल्विन, सम प्रोबेबिलिटी Fe एग्जिस्ट फॉर स्टेट अबव द फर्मी लेवल टू बी फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर Fe हो गई हमारी फर्मी लेवल के ऊपर की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस Fe हो गई उसके नीचे वाले की एम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है? अब देखो एक ग्राफ है, दिस इज EF. देखो EF पे कितनी आई थी? 1/2. 1/2. EF से पहले 1, EF के बाद 0, फिर आगे रेक्टेंगुलर. एंड एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस रेक्टेंगल विल चेंज इन दिस काइंड ऑफ कर्व. एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, सी T2 इज ग्रेटर देन T1, सो T2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, T1 की कम है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे. इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर है सबको? ओके. So the symmetricity of this distribution, empty and filled state के around, this is symmetric around the empty and filled state, and due to this symmetricity, the Fermi level is a very good reference point for the calculation of electron and hole concentration. So it is used in the calculation of concentration of electron and hole in the conduction band and valence band. We will see how to do it now. So before applying it for calculating the concentration, just need to remember one thing, that Fe is the probability of occupancy of an available state E. So Fe is the probability which tells us about the any particular state to be occupied or empty. So thus if there is no available state at E, there is no possibility of finding an electron there. तो अगर वहाँ पे अगर E का वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. इसका एग्जांपल है बैंड गैप में. इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होता है, कंडक्शन बैंड में होता है, बीच में जो बैंड गैप होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता. Now see 3 cases. First is intrinsic semiconductor, second is n-type semiconductor, third is p-type semiconductor. So you can see that in case of intrinsic semiconductor, the Fermi level lie exactly in the middle of the conduction and valence band. ठीक है? And this electron probability will be guessed by this tail of this f of c, this f of EC, and hole probability by this 1 minus f of E. Now in case of n-type semiconductor, since there are more number of electrons,
So this Fermi level will shift towards the conduction band. This go up. And in case of p-type semiconductor, this Fermi level will go down. This will go towards the valence band. Since there is a less number of electrons, there are more holes. Is this clear? Is this clear to all the three cases? So see, in the intrinsic material, the Fermi level EF must lie at the middle of the band gap. In n-type material of distribution function, Fe must lie above the intrinsic on the energy scale. The energy difference EC minus EF gives the measure of n. और ये जो difference होगा EC minus EF, this will tell us about the n number of electrons. And for p-type material, Fermi level lies near the valence band, such that 1 minus Fe की जो टेल होगी वो EV के बिलो होगी. देखो इसकी टेल EV के नीचे है, ठीक है. और यहाँ पे जो EF माइनस EV होगा, ये हमें बताएगा हाउ स्ट्रॉन्ग इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर. जितना ज़्यादा वैल्यू होगा इनका, जितना कम उतना अच्छा सेमीकंडक्टर, ठीक है. ये क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इफ नॉट देन आई कैन मूव फॉरवर्ड, देन आई कैन मूव अहेड. So now, with the use of this distribution function and energy density, we will calculate the concentration of electron and holes. See, so the Fermi distribution can be used to calculate the concentration of electrons and holes in semiconductor if the density of available state in the valence and conduction band are known. If we know the densities or available states in valence and conduction band, then we can calculate the distribution. So the concentration of electron in the conduction band is n naught is equal to EC to infinity Fe NEDE, and this NEDE is the density of states. This Ne times of DE is the density of states in the range DE, and since we are calculating the number of electron in the whole conduction band, so we have to integrate this from EC to infinity. That's why there is a limit from EC to infinity. And their subscript O denotes the electron concentration at equilibrium. So this concentration is at equilibrium. ये clear है सबको? So the number of electron per unit volume in the energy range D is the product. अब देखो जो लिखा है वही यहाँ वर्ड्स में होगा. Number of electron per unit volume in the energy range DE is the product of the density of state means NEDE and the probability of occupancy FE. This FE. तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो उस रेंज की आ जाएगी कंसंट्रेशन, लेकिन हमको तो पूरे कंडक्शन बैंड की निकालनी है. सो वी नीड टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम NC टू इन्फिनिटी, दिस EC टू इन्फिनिटी. सो द टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज द इंटीग्रल ओवर द एंटायर कंडक्शन बैंड. द फंक्शन NE कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स एंड पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. Usually NE is proportional to e raised to power 1 by 2, and since it is directly proportional to E, so it means that the density of state in the conduction band increases with the electron energy. As we increase the energy, this density of state increases. But the result is that product, this FeNE, decreases rapidly above EC. As we move above EC, this product decreases. And very few electron occupy the energy state above the conduction band edge. क्योंकि जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एजेस पे होते हैं, बिल्कुल बाउंड्री के पास. उसके जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. इसी तरह द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एम्प्टी स्टेट मीन्स होल इन द वैलेंस बैंड इज 1 माइनस Fe. डिक्रीज रैपिडली बिलो EV. जैसे ही हम EV यानी वैलेंस बैंड से नीचे जाएंगे तो होल यानी एम्प्टी स्टेट को मिलने की प्रोबेबिलिटी घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक
ठीक है, क्योंकि होल्स जो होते हैं ज़्यादातर टॉप मोस्ट लेयर पे होते हैं। ये क्लियर है सबको? क्लियर है सबको या नहीं? इसके क्वेश्चन क्या कह रहे हो? क्वेश्चन सर इसके क्वेश्चन कैसे आएगा वो तो पेपर में पता चलेगा ना। क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट न्यूमेरिकल, जैसे मैंने तुमको एफ ही दे दिया, एन ही दे दिया, इंटीग्रेट करो, उसका एन नॉट निकालो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तुम्हें सीखना पड़ेगा, वो मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूँ। वो सब तो आता है सर, लेकिन इसमें जो इसी और ये इन्फिनिटी ये सब तो लिमिट है। लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल तो तुमने पढ़ा होगा, लिमिट कैसे पुट करते हैं, वही है बस, और कुछ थोड़ी। लिमिट इसी क्या सर, एनर्जी कंसंट्रेशन, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। एनर्जी कंसंट्रेशन क्या होता है? EC इज द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो दीज आर द ग्राफ। ओके सर। पहला तो सिंपल बैंड डायग्राम है, दूसरा डेंसिटी ऑफ स्टेट, फिर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ इज कैरियर कंसंट्रेशन। तो यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट केस फर्मी लेवल इज एग्जैक्टली मिडल, एन टाइप में अब ऊपर शिफ्ट हो गया, पी टाइप में नीचे शिफ्ट हो गया। इसी तरह यू कैन सी द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो बैंड पे ज़्यादा है, उसके बाद एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखो एन टाइप में भी सेम, बस ये फर्मी लेवल ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे, फोर्थ वाला ग्राफ देखो बिल्कुल एजिस पे हैं, उसके बाद घट रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे इसमें देखो एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें जैसे इक्वल है बिल्कुल। एन टाइप में ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पी टाइप में नीचे वैलेंस बैंड में होल्स ज़्यादा है। Now if we find out the electron concentration in the conduction band, it is the multiplication of effective density of state, that is n of C, and the Fermi distribution at that value, that is f of EC. So if you, in this expression we assume that EF lies at several kT, means this expression is very large, this exponential expression। ये लार्ज होगा तो यहाँ पे 1 इग्नोर कर सकते हैं, 1 को इग्नोर करेंगे तो सिर्फ ये रह जाएगा EXP माइनस EC माइनस EF बाय KT। अब इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दिस विल बी n नॉट इज इक्वल टू NC एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EC माइनस EF बाय KT। नाउ दिस वैल्यू ऑफ NC कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द method of statistics that is not in your syllabus, and it come out to be NC is equal to 2 into 2 pi mn star times of KT by h square की पावर 3/2। So this सर इसमें 1, हाँ बोलो बोलो सर इसमें जो 1 को इग्नोर कर रहे हैं सर, 1 प्लस वाला को इग्नोर कर रहे हैं ना सर, ऊपर तो 1 बाई समथिंग तो बचेगा ना सर, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना, ये नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस नहीं होगा। अच्छा हो ये सर, ओके ठीक है ना। तो जैसे जैसे as we increase the electron concentration increases as EF move closer to conduction band, जैसे जैसे हमारा फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। सेम तरीके से जैसे हमने ये निकाला, इसी तरह अगर होल का कंसंट्रेशन निकालेंगे वैलेंस बैंड में, इट कम आउट टू बी P नॉट इज इक्वल टू NV ब्रैकेट 1 माइनस F ऑफ EV, वेयर NV इज द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द वैलेंस बैंड। NC तो थी डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड, NV हो गया डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द वैलेंस बैंड। So the probability of finding an empty state or hole at EV is 1 minus F of EV, ये आएगा 1 माइनस, अगेन जैसे पीछे नेगलेक्ट करके सॉल्व किया, तो सॉल्व करेंगे तो इस पे आ जाएंगे, ये आएगा EXP ब्रैकेट माइनस EF माइनस EV बाय KT।
इसको फिर से पिछले एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं यहाँ पे. We will get this whole concentration P naught is equal to NV exponential bracket minus EF minus EB by KT. So and this NV is given by exactly same, that is NC. The only difference is इसमें in this NC there is effective mass of electron, in this there is effective mass of holes. Again hole concentration increases as EF move closer to valence band. जैसे जैसे EF वैलेंस बैंड के पास जाएगा होल कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. नाउ जो हमने भी फॉर्मूले निकाले N नॉट P नॉट, ये इक्विलिब्रियम पे थे. अब हम सेम फॉर्मूला अगर इंट्रिंसिक लेवल में निकालें तो ये जस्ट उसकी जगह I कर दो, E की जगह E ऑफ I कर दो, तो वी विल गेट दिस बोथ NI एंड PI. दिस इज NC एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EC माइनस EI बाई KT एंड दिस इज PI is equal to NV exponential power minus EI minus EV by KT. Now we will calculate the product of N naught P naught and NI PI. This will be the product of N naught P naught, that is NC NV times of exponential minus EG by KT, और NI PI का निकालेंगे तो NC NV टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस EG बाय KT. यहाँ पे EG को हमने पुट कर दिया EC माइनस EV और EC माइनस EI, तो इसमें पुट कर दिया, तो यू कैन सी दैट दिस बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल. नाउ वन मोर थिंग, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, सो NI मस्ट बी इक्वल टू PI. तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो जाएगा NI का स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट हो जाएगा. So this will be NI is equal to root NC NV exponential power minus EG by 2 KT. Now we can put this in the equilibrium case. So we will get this formula N naught P naught is equal to NI square. And it's a very important relation. It can be used directly also in numerical or everywhere, anywhere. Now comparing 4.17 and 4.19, this 4.19 and 4.17, we can see that this EI lies exactly in the middle of the band gap. We will get this EC minus EI is equal to EG by 2. So EI is exactly in the middle of the band gap if effective density of states are equal. But usually these density of states are not exactly equal, because see दोनों के फॉर्मूले में एक में होल का इफेक्टिव मास आ रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन का, तो और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. देखो ये रहा, मान लो सिलिकॉन के लिए ये रहा इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास, ये रहा होल का इफेक्टिव मास. तो जब NC और NV अलग आएंगे तो इनका एनर्जी शिफ्ट भी अलग आ जाएगा. तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले N नॉट P नॉट के. तो यहीं तक था ये. तो हमने फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, डिफरेंट केसेस में प्रोबेबिलिटी देखी, हमने होल्स और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकाला और देखा हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन एनर्जी एंड टेम्परेचर. तो इसी के साथ तुम्हारा मॉड्यूल 3 पूरा हो गया. मैंने मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 दोनों के नोट्स अपलोड कर दिए. मॉड्यूल 4 में 4 एक्सपेरिमेंट हैं दैट यू हैव टू रीड एंड यू विल गेट 1 एक्सपेरिमेंट इन पेपर. दिस इज फॉर थ्योरी. ये एक्सपेरिमेंट वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है जो एक्सपेरिमेंट लैब में आएगा, ये अलग एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, नोट्स अपलोडेड हैं तो उनको पढ़ो. नेक्स्ट क्लास से देखते हैं, अगर हो सकता है मॉड्यूल 4 तो मैं खुद मॉड्यूल 4 के नोट्स दे दिए हैं, तो यू गो थ्रू एंड देन आस्क मी द प्रॉब्लम, देन वी कैन डायरेक्टली मूव टू द मॉड्यूल 5 दैट इज लेज़र. लेज़र थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो तुम्हारे फिर फाइनल एग्जाम में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 3 और 4 और 5 का थोड़ा सा पार्ट, इतना सिलेबस आ जाएगा. किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो.
सर प्रैक्टिकल के क्या अभी ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? ऑनलाइन ही होगा। डेट्स बता दूंगा मैं, एक बार फाइनल हो जाने दो 1-2 दिन में। सर अभी जो एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आप बोले सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। कौन पूछा ये? किसने पूछा ये? सर अमन। हाँ अमन यार, क्लास स्टूडेंट से पूछो, मैं कई बार बता चुका हूँ। अब तुम क्लासमेट से कौन? नहीं सर अभी ये प्रैक्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, अभी सर आपने जो एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए कहा था तुरंत सर। अभी तो मैंने जो बोले मॉड्यूल 4 जो तुम्हारा थ्योरी का है ना, यस सर। उसमें 4 एक्सपेरिमेंट हैं। वो चारों के नोट्स मैंने क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं। वो फाइनल एग्जाम थ्योरी एग्जाम के लिए, उसका प्रैक्टिकल से लिंक नहीं है। तुम अगर अपने सिलेबस का मॉड्यूल 4 देखोगे तो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो चारों एक्सपेरिमेंट के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए। वो थ्योरी पूरा तुम्हें याद करना पड़ेगा, वर्क कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब। तो वो पढ़ना, उसमें कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछना। तो वो मॉड्यूल 4 फिर शायद थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद सीधा मॉड्यूल 5 पे आ जाएंगे, ठीक है ना, लेज़र वाला। यस सर। और कोई डाउट किसी को? आज बच्चे बहुत कम हैं तुम्हारी क्लास में। क्या सब ट्रैवल कर रहे हैं घर को, या ऑनलाइन होने के बाद कोई क्लास अटेंड करना ही नहीं चाहता? सर हॉस्टल का नेट अच्छा से काम नहीं कर रहा है, और दूसरी चीज़ की बहुत सारे चले गए घर, जा रहे हैं जैसे निकल रहे हैं या रास्ते में होंगे और निकलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आज का टेस्ट दे दो। लैब तो मैं तुम्हारी ऑलमोस्ट कवर करा चुका हूँ, तो आज की लैब अगर तुम अब फाइल वाइल बनाओ, अब सीधा लैब का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो आज की नहीं लैब सर, और लैब वाले में सर 2-3 से स्टूडेंट से मैं पूछा तो बोल रहे कि मेरे पास 3 ही है, कोई बोल रहा है 5 है, पूरा मतलब किसी के पास नहीं है सर। तो 2-3 बच्चों से ले लो, ऐसे ही होगा, किसी पे सारे नहीं होंगे। जिस पे जो है उससे वो ले लो, नहीं तो गूगल से सब मिल जाता है। रीडिंग तो तुम ले नहीं पाए। बाकी मेरे पास तो हाँ बोलो। 3-4 तो मेरे पास है सर। हाँ। लास्ट वाले नहीं मिले। नहीं तो अपनी क्लास की वो इशिका या अनुष्का, इन लोगों से पूछो, उन पे सारे होंगे, ठीक है ना। ठीक है। हाँ हाँ।